स्पाइनल कोड रफली हमने कल बनाया था स्पाइनल कोड। यस। हाँ, क्या बोल रहे हो? रेटिकुलर फॉर्मेशन बताना है। कहीं आया था, आ गया क्या रेटिकुलर फॉर्मेशन? कहीं आया था? नहीं, इसमें कहीं हमने पढ़ लिया या नहीं पढ़ा? अभी आया नहीं अभी? कोई नहीं, अभी बता देते हैं, नहीं तो आगे मैं वैसे पढ़ाऊंगा। सो रेटिकुलर फॉर्मेशन, कल हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, इसको मैंने बोला था डी का सेक्शन, याद है? व्हाट इज डी का सेक्शन? क्रॉसिंग ऑफ न्यूरॉन। सो दिस इज द ब्रेन, देन वी हैव द मिड ब्रेन, pons, medulla, then spinal cord. This is the cerebellum. The ascending and descending tracts will enter into the spinal cord and move upward. Here they will also enter and move upward. This is the medulla oblongata. So at the level of medulla, these fiber will cross. They will cross and move upward in the opposite side of the brain. यही होता है. So ये जो point है इसको ध्यान रखना. ये point को हम क्या बोलते हैं? Decussection of neuron. This crossing is known as decussection of neuron. Now ये जो एरिया है मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ साइड में अलग से. This is the area. The nerve fiber is a white structure or gray structure. Nerve is a white structure or gray structure. Which structure? White. Nerve is a part of axon. Axon से बना है, और axon से जो बनता है उसका कलर क्या होगा? White होगा. So जो ये nerve यहाँ से move कर रहे हैं, these are the nerve which is moving in upper side. These are the axonal fiber and these are in white color. किस कलर में होगा? White color में. And in this area, in the medulla oblongata, the part of this medulla oblongata is having gray matter, outside gray matter, inside little bit white matter. Most of the part is gray, little bit part is white. So this is the part which is in medulla oblongata. यहाँ पे क्या होगा? न्यूरॉन का क्रॉसिंग होगा. Like I should use the okay ब्लैक, ठीक है. Okay, so न्यूरॉन की क्रॉसिंग हम बना रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 एंड इधर से भी आएंगे. So they will cross to each other. When the neuron is crossing with each other, क्या होगा देखें आप यहाँ पे. This is the gray part, then it is the white part. Gray part, this is the structure which form in the medulla oblongata. Medulla oblongata is a structure with gray matter and through the gray matter white fiber are moving like this. White fiber ऐसे move कर क्रॉस कर रहे हैं. So ये white fiber इनके बीच में क्या है? Gray matter है. So आपको ये कुछ इस तरह से विजिबल होगा. अगर आप इसका हेमी सेक्शन करके अगर विजुलाइज करेंगे तो आपको दिखेगा कि gray matter और उसके अंदर कौन क्रॉस करके जा रहा है? White matter. This structure which form at the medulla oblongata, this is known as reticular formation. This is known as reticular formation. So what is reticular formation? It is nothing when the axonal fiber or the neuronal nerve fiber crossing at the medulla oblongata through the gray matter, they will form a specific type of structure with gray white, and this is known as the reticular formation. Yes, clear? What is reticular formation? Clear? और ये जो हमने यहाँ बनाया, ये जो ऐसे जाएंगे तो यहाँ से न्यूरॉन ऊपर जाएगा, इधर ये गया, ये गया, इधर गया, इधर गया, और ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये बन गया इससे बॉक्स. सो यही बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नॉन एज रेटिकुलर फॉर्मेशन. क्लियर? नेक्स्ट, स्पाइनल कोड. सो स्पाइनल कोड हमने कल ड्रॉ किया था. दिस इज द हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कोड एंड this is the central canal of the spinal cord. Now first we start upper border of the spinal cord, start at the which bone? Here which bone? Atlas bone. Bone जो स्टार्ट होगी आपकी कौन सी रहेगी? एटलस. एंड जो यहाँ पे स्कल के अंदर जो ओपनिंग होती है, दैट ओपनिंग इज नोन एज, जहाँ पे आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड अटैच होगा थ्रू दिस ओपनिंग, दैट ओपनिंग इज नोन एज foramen of magnum. That is known as foramen of magnum. So it will start at the foramen of magnum to the last part. This is the last part, and this part in adult it will be ended at the L1 level, and in the children, because in child body is still under developing stage, अभी तक बच्चों की हाइट जो है वो कंप्लीट नहीं हुई, हाइट अभी भी बढ़ रही है चिल्ड्रन में, एंड इसी वजह से स्पाइनल कोड जो है थोड़ा नीचे रहता है, जिससे हाइट बढ़ेगी ऊपर आ जाएगा एट द लेवल ऑफ L1. सो एडल्ट L1 और चिल्ड्रन L2. नेक्स्ट, the total length of this spinal cord from here to here, it is an average 45 centimeter. This diameter from here to here, it is approximately 2 centimeter or equal to your little finger. Your spinal cord diameter is equal to your little finger. जो अपना little finger होता है सेम उतना ही diameter रहता है आपके spinal cord का. Next, at this part there is a cone shape structure. This cone shape structure, and this is known as conus medullaris.
conus medullaris. Next, in our spinal cord, the multiple spinal nerves arise from this cord. Earliest 8 spinal nerves are known as cervical C1 to C8, then T1 to T12. These are T1 to T12, that is thoracic. L1 to L5, lumbar. Then S1 to S5, sacral, and C1, coccyx या coccygeal. After L1, the nerve will arrive like this, and they will form a horse tail-like structure, and that's why this collection is known as coda equina. Coda equina. Clear? This nerve जो C1, C2, C3, C4 ये nerve कभी भी single नहीं आती है except thoracic. Thoracic nerves arise single, but remaining all other nerve arise in a bunch, group में आएगी, कभी भी वो single नहीं आएगी, and that bunch of nerve is known as plexus. This is known as plexus formation. So आगे बताऊंगा various plexus जो यहाँ बनते हैं, except in one part, that is thoracic. Thoracic में कोई plexus नहीं बनेगा, बाकी सारी nerve में क्या बनता है? Plexus बनता है. There are 5 plexus in our body. We'll discuss in detail. इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे. So this is the basic. One more thing जो हमने कल पढ़ा था, जो आपकी layers होती है, protective layers. The innermost layer is a pia mater, and pia mater last reach up to the coccyx. कहाँ तक जाती है? Coccyx तक जाती है. Other membranes like arachnoid mater end at the S2 and dura mater end at the S4. But this thread-like structure of pia mater reach to the last part of vertebrate column coccyx, and this thread is known as phylum terminate. This is approximately 20 centimeter long. 20 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक ये टर्मिनेट जो फाइलम टर्मिनेट कितना लंबा होता है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर स्पाइनल कॉर्ड. बना लिया था कल? नहीं बनाया? मूव करें? बना लिया? यस. सो दिस इज द बेसिक. मूव करें? बना लिया? यस. सो दिस इज द बेसिक अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड. वन बाय वन डिस्कस करते हैं पूरा डिटेल में. So now your next target is Norset. Next target is your Norset, and today is 17. So 17/3. Approximately you have 58 days. आपके पास जो है वो कितने दिन बचे हैं? 58 days. On next 59th day you have your exam. 15th of September is the exam date. So you will have exam on just 59th day. 2 महीने भी नहीं बचे हैं. 2 महीने से कम हो गया है. Very soon I will share you a plan. एक प्लान शेयर करूंगा मैं YouTube के ऊपर, जहां पे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में, और उसके साथ साथ में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में जुड़ूंगा आपके साथ लाइव JINC नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे. सो क्लास जो है वो रखी है मैंने 21st को, 21st ऑफ जुलाई, जब संडे होगा उस दिन हम डिस्कस, इट इज अ डिस्कशन क्लास की. नॉर्सेट 7 में हम कैसे पार करें, नैया कैसे पार होगी, क्या करें, तो वो सारा डिस्कशन करेंगे हम 21st ऑफ जुलाई को. और टाइम जो होगा वो ऐसा होगा जिसमें आप ही अवेलेबल रह सकते हैं. क्लास के टाइम नहीं रखूंगा मैं. आई एम फ्री ऑन द संडे. 21st इज संडे, और संडे को कोई काम नहीं होता है, तो इसलिए संडे को रखा है. उसके बाद नेक्स्ट डे से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्लासेस जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करती है वो सारी. यस, रेडी? चले आगे, मूव करें नेक्स्ट. सो स्टार्ट करते हैं. स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड नहीं बनाया? अरे बना लिया. स्पाइनल कॉर्ड. Spinal cord is a cylindrical part of the central nervous system which suspended यानी hang किया हुआ. It's a hanging structure which suspended in vertebral canal surrounded by meninges and CSF, cerebrospinal fluid. Next, extended from upper border of atlas to lumbar vertebra. First L1 अभी बताया था. Atlas bone to L1 lumbar vertebrae first bone की बात करें तो स्पाइनल नर्व कल बताया था कितनी होती है टोटल, अभी भी बताई थी आपको. C8 that is cervical 8, thoracic 12, lumbar 5, sacral 5 and coccygeal 1. These are the total 31 pair or 62 in number. एग्जाम में नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व या टोटल पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व जो भी ऑप्शंस में ध्यान से पढ़ के आंसर देना है. कभी कभी ऐसे होता है कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 62 इन नंबर, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा होता है 31 इन पेयर, और ऑप्शन डी में लिखा होता है बहुत A and C, और आप वहां तक रीच नहीं करते हैं.
आप बहुत जल्दबाजी, यू आर वेरी वेरी हरी, बहुत फास्ट होते हैं आप, बहुत टाइम कम होता है आपके पास और आप पढ़ते नहीं है और आप आंसर क्या लगा देते हैं ऑप्शन ए, और फिर बाहर आके अपने इसको सेरिब्रम के प्री फ्रंटल एरिया को बोल रहे होते हैं मेमोरी क्यों नहीं आई है, लेफ्ट वाले को बोल रहे होते हैं मेमोरी, लेफ्ट इज रिलेटेड टू मेमोरी, राइट इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंसी। द नेक्स्ट बोन की बात करें तो व्हेन बेबी इज बोर्न और जब डेवलपमेंट हो रहा है तब बोन कितनी होती है टोटल, सो द नंबर ऑफ बोन इज स्पाइनल वर्टिब्रे इज 33 बिकॉज द sacral and coccygeal bone, जब बच्चा बोर्न होता है तो उस टाइम ये जो sacral वाली 5 बोन होती है सेपरेट होती है इस तरह से, these are 5 sacral bone and these are 4 coccygeal bone, ये क्या होती है सेपरेट रहती है। आफ्टर बर्थ these bone fuse together, बर्थ के बाद जैसे नंबर यहाँ पे कितना था 5 and 4, आफ्टर बर्थ these bone fuse together and they will be as a single bone, ये 5 बोन जो थी वो कितनी हो जाएगी 1 और ये 4 बोन भी कितनी हो जाएगी 1, so there will be 9 बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ देयर विल बी 2, डिफरेंस कितना हो गया 7 बॉन कम हो जाती है आपकी। सो स्पाइनल वर्टिब्रे दैट विल बी 33 जब बर्थ होगा तब, आफ्टर बर्थ कितनी रह जाएगी बोन, वर्टिब्रल बॉन, वर्टिब्रल बॉन दैट विल बी 26, 7 कम हो जाएगी इससे, C7 T12 L5 S1 एंड C1, S1 एंड C1। क्लियर है, मूव करें। सभी को मूव करें, लिख लिया नहीं लिखा। सो अभी एग्जाम जो है बहुत ही नियर है आपके और बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा आपके पास, और इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी जो है बिल्कुल स्पीड के साथ करना स्टार्ट कर दें। अभी वेट नहीं करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, नहीं तो अगले नोट सेट की डेट हमारे पास पहले ही आ रखी है अप्रैल, यस, तो टाइम उसके लिए भी नहीं है, उसके लिए भी बहुत कम टाइम है। सो इसीलिए अभी से क्या करें, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, जितने हाथ पैर मारने हैं मार लो, बाद में कुछ नहीं रहेगा। क्लियर, वो करें। नेक्स्ट एक एग्जांपल देता हूं मैं, कल एक किसी स्टूडेंट का कॉल आया मेरे को और वो अपनी मतलब व्यथा, व्यथा मतलब समझते हो, दर्द पीड़ा, वो बता रहा था। सो मैंने बोला भाई क्या बोला, बताओ भाई क्या है। सो इज नॉट बिलोंग टू आवर कोचिंग, हमारी कोचिंग का नहीं है वो, पहली चीज तो। फिर भी उसने बोला, मैंने कहा बताओ सुन लेते हैं आपकी पीड़ा भी, हमारे वालों की तो सुनते हैं, आपकी भी देख लेते क्या है। सो उसने मेरे को बताया, सर डे बिफोर यस्टरडे आई स्पेंड अप्रोक्सीमेटली 7 hours, आई स्पेंडेड अप्रोक्सीमेटली 7 hours on YouTube continuously as a name of marathon class। किस नाम पे स्पेंड किए, मैराथन क्लास के नाम पे 7 घंटे मैंने स्पेंड किए कि ये मैराथन क्लास है और इससे मेरा सब कुछ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और फिर मैं अगले दिन क्या देने गया, एसजीपीजे का एग्जाम देने गया। जब एसजीपीजे का एग्जाम दिया तब मुझे पता चला कि ये जो 7 घंटे मैंने यूट्यूब पे खराब किए उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, उसमें से एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं आया। और उसके बाद सर मैंने कसम खा ली, मैंने बोला क्या, कि आज के बाद ये मैराथन नाम पे कभी मुझे धोखा होगा नहीं लेना, ये मैराथन का मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, और यही है मैराथन। सो फिर मैंने उसको बोला कि भाई ये तो लाइफ का फैक्ट होता है, जब आप चलना सीखते हैं, होता है बच्चा डेवलपमेंटल माइलस्टोन पढ़े आप लोगों ने, लाइफ में बच्चा जब पहली बार हाथ उठा के जब पकड़ना कुछ भी करना स्टार्ट करता है तो फिर जो आता है सबको क्या करता है, पकड़ता है। उसके सामने सांप भी रख दो उसको भी पकड़ेगा वो, उसको नहीं पता है क्या है, व्हाट इज दैट स्नेक। सो बच्चा गरम गरम तवे पे आ जाता है, हाथ रख देता है पहली बार, और जब उसको पहली बार पता चलता है कि है नेक्स्ट टाइम, वो कभी भी उधर वापस नहीं जाता है। और हमारे तो कहावत भी होती है कि ठोकरों से ही आप लोग सीखते हो, ठोकर ही तो चलना सिखाती है। तो भाई आपने ठोकर खा ली, समझ में आ गया, अब उस रास्ते जाना ही नहीं है जिसपे ठोकर लगे, अपने अच्छे वाले रोड पे चलो, ऐसे रास्ते पे जाओ, लंबा होगा कोई बात नहीं पर कम से कम अच्छा तो होगा। सो इसीलिए ये भटकने वाली चीजें होती है ना, एक लाइन जो मैं बताता था पहले भी कि आना जाना छोड़ चुके और रखे दिल पे पत्थर, अपने घर का मुख है मोड़ चुके। लेकिन आप लोगों का वो मुंह, घर का जो मोह है ना, प्यार है, वो छूट नहीं रहा है, वो अभी भी आप भटक रहे हो इधर उधर, कभी दिवाली पे इधर जा रहे हो, कभी होली पे उधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो। तो ऐसा अगर हम उसको बताएं, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो दिवाली पे इधर जाओगे, फिर वो 6 महीने उधर गए, 4 महीने इधर गए, 4 महीने इधर गए, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब जाके आपको समझ आ जाएगा कि ये सारे रास्ते पे ठोक रहे हैं और आपको सीधे रास्ते ही चलना पड़ेगा। तो आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। लाइक मैराथन क्लासेस करना या कुछ भी करना, हम 12-12 घंटे क्लासेस हम ऑफलाइन में खड़े होकर ले सकते हैं, और यूट्यूब तो एक छोटी सी चीज है, वहां तो स्टूडियो में बैठ के कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, यहाँ तो खड़े होकर पढ़ा सकते हैं, और वो बेनिफिशियल भी आपको होता है। सो ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल पावर नहीं है, कि जेएनसी के टीचर्स डज नॉट हैव द पोटेंशियल टू स्टैंड फॉर 12 आवर्स और 5 आवर्स और 6 आवर्स फॉर द मैराथन क्लास। नथिंग, मैराथन क्या है, कुछ नहीं है, 7 टीचर खड़े होकर 7 घंटे पढ़ा दिया, एक एक घंटा सबने पढ़ाया, और हमने भी 5 टीचर मिलकर 2-2 घंटा सबने पढ़ाया, पर हमने एक साथ नहीं पढ़ाया, हमने सब क्या किया, अलग अलग पढ़ाया। और हमने वो पढ़ाया
जिसमें लगा कि आ सकता है या कुछ बेनिफिट मिल सके। मैं हर बार एक एग्जांपल तो सबको देता हूं, और वो है देयर आर 4 चेंबर इन योर हार्ट, है कि नहीं है? जब आप ऐसा क्वेश्चन जब रीड करोगे कभी भी, लाइक 2018 में दिल्ली एम्स का पेपर हुआ था, और वहां पे क्वेश्चन आया था पहली बार, मैंने उस क्वेश्चन को दिया था उस टाइम कि हाउ मेनी चेंबर्स इन द हार्ट, और उसमें ऑप्शंस थे 2, 4, 6, 8। सो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन फॉर अ नर्सिंग स्टूडेंट, और इट मे बी फॉर अ नॉन नर्सिंग स्टूडेंट आल्सो। वो भी जानता है कि देयर आर 4 चेंबर इन आवर हार्ट, दो ऊपर दो नीचे, सब जानते हैं। आंसर क्या था? अच्छा, मैं क्या करूंगा इन माय YouTube क्लास, आई विल पुट दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी चेंबर्स इन आवर हार्ट, options are 2, 4, 6 and 8. Now my explanation will start for 15 or 20 minutes in this question. What I will explain, this is the most easiest question, but ऐसे ही क्वेश्चन हम गलत करते हैं एग्जाम में। इसमें क्या गलत करोगे? क्या इसमें गलत कर सकता है कोई? कोई गलत नहीं करेगा, मैं लिख के दे दूं स्टाम्प पेपर पे। नाउ ये अपना हार्ट होता है, इसमें 4 चेंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4। ऊपर वाले को एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल। तो ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से ब्लड आता है, इधर से जाता है, होता है। सो होगा क्या, आफ्टर दिस 20 मिनट एक्सप्लेनेशन, क्लास 1 घंटे का है, 10-15 मिनट एक्सप्लेनेशन कर दिया, आपको इतनी खुशी होगी कि मेरा क्वेश्चन क्या था, राइट हो गया, ये क्वेश्चन राइट, 4 आंसर बिल्कुल राइट है। और इसमें खुशी होने की क्या बात है? आपको तो ठीक है, अगर नर्सिंग नहीं किया उसको भी बिठा देंगे तो वो भी आंसर दे देगा कि 4 होते हैं। और बस ये दुनिया इसी पे चल रही है। द बिग प्रॉब्लम इज, जब भी मैंने क्लास लेना बंद ये इसलिए किया क्योंकि जो मैं क्वेश्चन पुट करता हूँ वो क्वेश्चन ऐसा एक भी नहीं होता है, और मोस्टली गलत आंसर ही होते हैं। इसलिए मैंने बंद कर दिया, क्योंकि स्टूडेंट को लगता है कि ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आएंगे ऐसे नहीं आएंगे। उनको क्या लगता है आएंगे क्या, हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, 4। हाँ, यही पढ़ते हैं। हेपरिन का एंटीडोट लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था, इस बार फिर आएगा, हम बता रहे हैं। अरे आप मत बताओ तो ही आएगा, आप नहीं भी बताओगे तो भी आएगा। हेपरिन का एंटीडोट हर साल आएगा, पूछोगे भले आप बोर्ड पे उधर लिख भी दोगे, उसके बारे में 10 मिनट तक पढ़ोगे, हेपरिन का ये प्रोडक्ट ये नहीं सब कर दिया, फिर लास्ट में ये पिछले साल आया, अगली बार भी आएगा, और आ जाएगा तो उसको ऐसा बड़ा फोटो छाप के दिखाएंगे, देखो हमने बताया था आएगा। अरे 4 तो बताए थे, बाकी 96 कहां से है ये बताओ। है पोटेंशियल पावर है, 4 का फोटो दिखा दिया, बाकी 96 कहां है कहीं पे? जब मैं एक बुक का रिव्यू कर रहा था, सो उस बुक वाले ने क्या किया, उसने मुझे बोला कि हमारे इस बुक से पिछले साल 20 क्वेश्चन आए, 30 जो भी बोला उसने, इतने 20 क्वेश्चन आए। मैंने बोला बताओ कौन कौन सा है? उसने बताया हार्ट के 4 चेंबर होते हैं, देखो ये हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसका ये होता है एंटीडोट, ये हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये इसमें ये होता है, ये हमारा लिखा होता है, ये सारा। मैंने कहा बिल्कुल। फिर उसको मैंने बोला इस किताब को देखा आपने, इसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि हमारे 20 क्वेश्चन आए, और उसमें यही क्वेश्चन है जो आपने बताए, बाकी 80 क्वेश्चन कहां से आए आपकी इस बुक में अगर कहीं प्रेजेंट है तो बता दो, तब तो मैं इस बुक को सबके पास दे दूं यहाँ पे। बाकी मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि आपकी बुक खरीदे। बोला सर 20% क्वेश्चन आगे सर, और क्या चाहिए? मैं वो 20% इनको वैसे ही आते हैं, अगर ये बिना पढ़े भी जाएंगे ना तो भी वो 20 नंबर लेके आ जाएंगे, उसके लिए आपको बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो उसका मोटो होता है कि वो हर एक स्टूडेंट को रीच करे। पोर वाले के लिए भी क्वेश्चंस होते हैं, मिडिल वाले के लिए भी होते हैं, इंटेलिजेंट के लिए भी होते हैं। आपका लेवल कहां तक होगा आप उतने क्वेश्चंस लाओगे, तो जो नहीं पढ़ता है वो भी कुछ नंबर तो लाएगा, 20-30 नंबर सब लाएंगे। और वो क्वेश्चंस आते कहां से हैं, उनका कोई रोल नहीं है। रोल ये है कि जो टॉपर ने क्वेश्चन किए वो कहां से आए, वो कहां से आए, सिर्फ आपकी इन थ्योरी की बुक से आते हैं, किसी एमसीक्यू बुक से, किसी मैराथन क्लास से, किसी संग्राम से, कहीं से नहीं आते हैं। वो सारे क्या है, क्या है, चोचलेबाजी है, सिर्फ किस लिए, हार्ट के 4 चेंबर के लिए। और ये 4 चेंबर आपको शोभा नहीं देते हैं, अपने 4 चेंबर नहीं पढ़ना है, पढ़ना क्या है, थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी रिवीजन। उसने लास्ट में क्या बोला स्टूडेंट ने मुझे कि सर आज एक बात समझ में आ गई, मैंने कहा बताओ, वो भी बताई तो लास्ट में जाते जाते, कि सर अब सिर्फ क्या पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी है, सब है मैराथन मैराथन सब क्या है, टाइम बर्बाद कर दिया मेरा, आज के बाद सिर्फ क्या पढ़ूंगा मैं, थ्योरी। तो आप लोग वैसे ही समझदार हो, आपको तो पहले ही पता ही है। हम लोग यहाँ पे पहले क्या कर रहे हैं, हम पहले से ही सारा फोकस कहाँ रखते हैं, मोस्ट फोकस जो है वो थ्योरी पे रखते हैं। इवन जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, अगर इतना आपको किसी दूसरे स्टूडेंट जो आपका कोई साथी और उसके पास मिल जाए, लिख दे, हम यहाँ लिख देंगे, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनका सारा फोकस सिर्फ 4 चेंबर पे ही है। वो 4 चेंबर पढ़ा पढ़ा के थक गए, उनके अलावा कुछ है नहीं, और वही क्वेश्चन को घुमाया और आ गए सीपीजीआई में, वही क्वेश्चन को घुमाया आरएमएल में, वही को घुमाया ईएसआईसी में। मतलब वो थकते नहीं है, और बच्चे भी थकते नहीं है, उनको भी लगता है हाँ 4 चेंबर पिछली बार भी आया था, इस बार फिर आ गया, मजा आ गया, हमारे सब राइट हो रहे हैं, और बच्चों को भी याद हो गया, और बच्चे भी ऐसे ही घूम रहे हुए, पिछली बार भी वो वही थे क्योंकि उनका हुआ नहीं किसी में, और इस बार भी फिर वही है सारे, क्योंकि इस बार भी उनका हुआ नहीं, अगले साल भी वही रहेंगे क्योंकि उनका फिर से नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो सारे वही पढ़ रहे हैं। रिपीटेड साइकिल चल रही है, पीपीटी चलती है, एक नंबर से स्टार्ट होती है 100 पे खत्म, फिर वापस 1 से स्टार्ट होकर 100 पे खत्म, क्योंकि 100 का क्वेश्चन जब चलता है तो आप पहले को भूल जाते हो, आपको लगता है कुछ नया आया है, लेकिन नया नहीं, वही है, साइकिल चल रही है, समझ रहे हो? तो इसलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। बेटर एमसीक्यू पढ़ने तो ट्यूसडे हम पेपर करते हैं, उसको पढ़े, उसको सोल्व करें, वहां पे नंबर लाओ। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो चल रहे हैं उनको आपने देख लिया, लाइक जैसे सर जो क्वेश्चन पढ़ाते हैं सुबह, वो ऐसे बुक से उठाए हुए 4 चैम्बर नहीं होते,
और वो थोड़ा कुछ आपको अलग सीखने को मिलेगा वहां पे, तो वो चीजें हैं। बाकी हमने तो पहले ही बंद कर ही दिया, और अभी जो मैं स्टार्ट करूंगा वो थ्योरी होगा, एमसीक्यू नहीं होगा। जिसको पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना है उनकी इच्छा है, मर्जी है जो कर रहे। हम क्या पढ़ेंगे अभी? स्पाइनल कोड। हाँ, जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, फर्स्ट टॉपिक जो मैंने आज प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए, जो बहुत ही जल्दी मैं स्टार्ट करूंगा, 20 सेकंड से ये स्टार्ट कर दूंगा। दैट इज फर्स्ट टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा साइडेक्स और ग्लूटाल्डिहाइड। व्हाट इज साइडेक्स और ग्लूटाल्डिहाइड, क्या होता है, कैसे बनाते हैं, क्या इसका क्वेश्चन आई थिंक पहले लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था 2018 सॉरी 22 या 23 के अंदर। सो ये साइडेक्स के ऊपर पहली क्लास जो मैंने ऑलरेडी आज प्रिपेयर कर ली, हम उसको डिस्कस करेंगे 22 को। स्टार्ट करें। स्पाइनल कोड, अभी साइडेक्स नहीं पढ़ रहे। स्पाइनल कोड, द इंटरवर्टिब्रल डिस्क absent। सो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जानते हो? दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम, सी सर्वाइकल बोन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सो देयर इज अ डिस्क बिटवीन दीस टू बोन, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम सी। द इंटरवर्ट डिस्कस करेंगे 22 को। स्टार्ट करें। स्पाइनल कोड, अभी साइडेक्स नहीं पढ़ रहे। स्पाइनल कोड, द इंटरवर्टिब्रल डिस्क absent। सो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जानते हो? दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम, सी सर्वाइकल बोन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सो देयर इज अ डिस्क बिटवीन दीस टू बोन, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। सो सम टाइम एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि दिस इंटरवर्टिब्रल डिस्क absent in which part of the vertebral column। so in our vertebral column, अगर हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क की बात करें कि कहां नहीं होती है, तो आपका आंसर होगा इंटरवर्टिब्रल डिस्क absent between C1 and C2 vertebrae column। the next is most flexible part of spinal cord is सर्वाइकल। आपने देखा ये सर्वाइकल वाला इतना घूमता है, ऐसा घुमा दो यहाँ पे, देखो थोरासिक वाले को घुमाओ, ऐसे कर सकते हो इतना? It's not possible. Little bit movement is possible, but this type of movement is not possible in the your thoracic, lumbar or coccygeal or sacral. So the most flexible part of spinal cord is cervical spine. Why it is most flexible? Why this part is most flexible part? There are two reasons. One is why it is most flexible, and second is what is the benefit of this most flexible cervical in our body. अरे अभी लिखा ऊपर इंटरवर्टिब्रल डिस्क absent in between C1 and C2। एक तो पहला रीजन की वर्टिब्रल कॉलम के बीच में डिस्क नहीं है, ये दो वर्टिब्रल कॉलम है, इनके बीच में यहाँ डिस्क, यहाँ पे जो स्पेस है इसके बीच में कुछ नहीं है, तो इनमें मूवमेंट करने के लिए ज्यादा स्पेस है। देयर विल बी मोर स्पेस कंपेयर टू अदर वर्टिब्रल बोन। उनके बीच में डिस्क होता है यहाँ पे, तो ये ज्यादा मूव नहीं कर पाएगी, इतनी मूव करेगी, लेकिन इसके पास इतना एरिया है, मूव कर सकती है। सेकंड थिंग, द होल, अगर हम स्पाइनल कोड की बात करें तो बॉडी का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो स्पाइनल कोड का है, उसमें सबसे इंपोर्टेंट पार्ट कौन सा है? द सर्वाइकल रीजन, बिकॉज थ्रू द this cervical spine there is a nerve arise which is known as cranic nerve। यहाँ से कौन सी नर्व आती है? cranic nerve। और जिंदा रहने के लिए this cranic nerve functioning is most important। ये cranic nerve सप्लाई करती है डायफ्राम को, एंड डायफ्राम इज अ मेजर रेस्पिरेटरी मसल। इफ डायफ्राम इज नॉट वर्किंग, द पर्सन गॉन। होता है जिंदा रहने के लिए, तो वो जिंदा रहने के लिए वो नहीं चाहिए, मुलाकात नहीं चाहिए, क्या चाहिए? फ्रेनिक नर्व का फंक्शनिंग होना जरूरी, बाकी बाद में होगी मुलाकात, ये नहीं है तो फिर सारी मुलाकातें खत्म हो जाएगी। सो यहाँ पे रीजन क्या है? देयर इज टू रीजन, वन इज absent of इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड सेकंड वन इज दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड। नेक्स्ट लिख लिए, ये दोनों लिख लिए। मोस्ट फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड, आंसर इज cervical, and intervertebral disc is absent in which part? Now in some cases this this intervertebral disc is enlarged, disc is enlarged, then the movement which is present in your spinal cord in spinal vertebrae will be restricted। पर्सन के यहाँ स्पाइनल कोड के बीच में डिस्क थी वो बड़ी हो गई, ऐसे अब कोई स्पेस नहीं है, मूवमेंट नहीं हो रहा है। जब मूवमेंट नहीं होगा, इन दैट सिचुएशन पर्सन विल हैव द सीवियर पेन इन द बैक, स्पेसिफिकली इन द this disc bulging is very commonly present in your lumbar area। lumbar region में most commonly आपको देखने को मिलता है, and in that situation we will go for a surgery, that is डिसेक्टोमी। सुना है? जो डिस्क बड़ी हुई है उसको क्या कर दो? कट करके हटा दो, डिसेक्टोमी। आगे नेक्स्ट, कर्व ऑफ स्पाइन। स्पाइन के कितने कर्व होते हैं? कर्व होता है स्पाइन में, कर्व ऑफ स्पाइन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कर्व, वन इज लाइक दिस, सेकंड वन इज लाइक दिस। देखा है? होता है ऐसा? नहीं होता है? These are the two types of curve,
This is known as primary curve. This is primary and this is secondary. This curve present at और C shape of spinal cord कब होता है? वेरी गुड. आपको पूछे कि स्पाइनल एनास्थीसिया या लंबर पंक्चर करना है तो कौन सी पोजीशन दोगे? एग्जांपल सी से पोजीशन का एग्जांपल पता ही नहीं है. मुस्लिम प्रेयर पोजीशन एंड अ वेरी कॉमन एग्जांपल हर बार लिखते हैं फिटल एटीट्यूड. नहीं सुना? कुछ नहीं पता है. बच्चे का एटीट्यूड नहीं देखा? एटीट्यूड बच्चा ऐसा ही रहता है वुम में, ये इधर गर्दन और इधर पैर इसके ऐसे ही तो रहता है सी शेप. सो द सी शेप ऑफ स्पाइन प्रेजेंट इन योर फिटल लाइफ, दैट इज प्राइमरी कर्व. एंड व्हेन वी आर डेवलप्ड एज ए चाइल्ड, बॉर्न हो जाता है और आप डेवलपमेंट आपका कंप्लीट होता है तो आपका स्पाइनल कोड ऐसा हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है, शेप हो जाएगा कुछ ऐसा. सो ये कौन सा होता है? सेकेंडरी कर्व. सो फर्स्ट इज प्राइमरी कर्व, 2 इन नंबर, प्रेजेंट इन फीटस, बच्चे में होता है. इन थोरासिक एंड सैक्रल रीजन. सो ये जो थोरासिक पार्ट है ये ऐसे बेंड होगा, ये सैक्रल ऐसे बेंड होगा, सीधा ही है. ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, ये दोनों ये सीधा रहेगा. ये दोनों ये सीधा रहेगा बीच वाला. रीजन दिस कर्व आर ओरिएंटेड इन कॉनकेव एंटीरियर, ये कॉनकेव और एंटीरियर यानी आगे की तरफ बेंड रहेंगे. जो बच्चा का मुंह होता है उधर बेंड रहेगा आगे की तरफ, कॉनकेव. सो दिस इज नोन एज प्राइमरी कर्व. एंड द नेक्स्ट वन इज द सेकेंडरी कर्व. सेकेंडरी कर्व 2 इन नंबर, डेवलप ड्यूरिंग चाइल्डहुड. एंड इन दिस द सर्वाइकल एंड लंबर भी बनाया तुमने. जो ये ऐसा होता है, दिस विल बी लाइक दिस एंड देन स्पाइनल कोड कुछ ऐसा हो जाता है, एस शेप हो जाता है. एस शेप ही होता है, नहीं देखा? अपना स्पाइनल कोड कभी एक्सरे करा के देखना, ऐसा दिखेगा एस शेप. सो दिस विल बी इन द सर्वाइकल एंड लंबर रीजन एंड दीस कर्व आर ओरिएंटेड कॉन्वेक्स शेप. इसका जो शेप होता है वो एस शेप हो जाता है, इसलिए शेप कुछ इस तरह से दिखता है आपको. क्लियर? पहला वाला था सीधा ऐसे, ये हो गया ऐसे. ऐसे होता है, एक लेंस होता है, देखा नहीं ऐसे? लेंस के शेप जानते हो? एक ऐसा होता है और एक ऐसे होता है, नहीं पता? तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसा है पूरा बनाने पे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. नेक्स्ट सो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि द प्राइमरी कर्व प्रेजेंट एट व्हिच एज ऑफ लाइफ. द आंसर इज इन fetal लाइफ एंड द सेकेंडरी कर्व प्रेजेंट एट चाइल्डहुड एंड इन एडल्ट. बारिश हो रहा है? हाँ हो गया, आज का कोटा पूरा हो गया. हुआ था अभी थोड़ी देर पहले बारिश. हाँ. सो यहाँ पे जोधपुर में डेली बारिश होता है, कोई मना नहीं कर सकता है. यस, वो करे आगे. नेक्स्ट
नहीं लिखा? सो इन दिस वीक वी कंप्लीट दिस नर्वस सिस्टम, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे आगे बचे हुए पार्ट को। इसके बाद आपका साइकेट्रिक स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर नर्वस सिस्टम साइकेट्रिक नर्सिंग पढ़ना है। सर विल टेक द क्लासेस, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सर पढ़ाएंगे। मूव करें, हटा दें इसको। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट vertebral body found in lumbar region. When the size of the vertebra bone is large, the disc will be small and space will be less. So the chances of disc bulging will be high. इसीलिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, अगर बैक पेन की प्रॉब्लम की बात करें तो कहाँ पे होती है सबसे कॉमन? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल. The most common body mechanics related injuries present in our spinal cord is at the spinal cord or vertebral column is at the lumbar region. अगर आप बॉडी मैकेनिक्स प्रॉपर यूज नहीं करेंगे ड्यूरिंग लिफ्टिंग और शिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग व्हाटएवर, जो भी आप मूविंग कर रहे हो, प्रॉपर यूज नहीं किया तो आपके बोन बैक में क्या होगा? बहुत सीवियर पेन होगा एंड इट इज वेरी पेनफुल। ध्यान रखें लाइफ में द नर्सेस आर द हेल्थ केयर पर्सनल विच इज हैविंग मोस्ट दिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू लंबर पेन। सबसे ज्यादा लंबर पेन किनको होता है? हॉस्पिटल्स, मेडिकल फील्ड में जितने भी पर्सनल होते हैं उनकी बात करें तो आंसर होगा the nursing officers having most problems, and the reason is we are more conscious related to patient. पेशेंट से रिलेटेड हम ज्यादा कटिस होते हैं। लाइक एक डॉक्टर जो है वो सिर्फ ऑर्डर लिख के चला जाएगा कि चेंज द पोजीशन फॉर 2 आवरली। कौन चेंज करेगा? आपको करनी पड़ेगी। यू आर कॉलिंग टू ए वार्ड बॉय और वार्ड लेडी टू हेल्प यू, बट वो हेल्प नहीं कर रहा है, वो भाग गया, फिर भी पोजीशन चेंज करनी नहीं करनी है? आप ये नहीं कह सकते कि वार्ड बॉय नहीं आया इसलिए मैंने चेंज नहीं करी। इफ यू से लाइक दैट, स्टिल इट्स योर प्रॉब्लम, आपका गलती आएगा। सो आप क्या करते हैं? नहीं आ रहा तो भी जबरदस्ती कर ही देते हैं ये लोग, उठा देते हैं। कोई उठाने वाला नहीं है, शिफ्ट करना है कोई नहीं है तो ले हम दोनों ही कर लेते हैं, जबरदस्ती उठा के रख देंगे, होता है। सो ये रॉन्ग बॉडी मैकेनिक्स की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है किनमें? नर्सेस के अंदर। नर्सेस इज हैविंग हाईएस्ट लंबर इंजरीज एंड लंबर पेन। एंड ये अभी तो ठीक है, लेकिन जब एज बढ़ जाएगी और आप 40 टू 60s में जाएंगे तब फिर आप अपना रोना रो रहे होंगे। दैट टाइम इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। लाइक ए सिंपल एग्जांपल, देयर इज ए इंस्ट्रूमेंट सेट। एक इंस्ट्रूमेंट सेट होता है हमारे, रिट्रैक्टर सेट होता है, इसको हम बोलते हैं थॉमसन रिट्रैक्टर। एंड दैट सेट वेट इज अप्रोक्सीमेटली 30 टू 40 केजी, 30 से 40 किलो का वेट होता है उसमें। सो मुझे वो सेट रिक्वायर्ड था मेरे ओटी के अंदर, डॉक्टर ने बोला और मैंने अरेंज किया। पर टू टोटीज पर्सन फाइटिंग, एक मैं और एक दूसरा फाइट कर रहा था कि ये पूछने ही वाला था, वो पूछने से पहले मैं पहुंच गया और मैंने पूछ लिया तो उन्होंने मुझे दे दिया, ले जाओ। अब अगर मैं उसको नहीं ले जाऊंगा तो वो आके उठा के ले जाएगा। सो मैंने क्या किया, उसको ऐसे उठाया और लेके आ गया। द राइट वे इज यू शुड टेक इट एंड कीप ऑन ट्रॉली, ट्रॉली पे रखते हैं हम, फिर ट्रॉली को ले जाते हैं। इट इज नॉट इजी, बट वो जोश जोश में क्या किया, मैंने ऐसे उठाया और लेके आ गया। पता तो था नहीं, वो तो ठीक है, ले रख दिया, यूज हो गया। आफ्टर 4-5 डेज उसके बाद मुझे पता चला कि अब वो सेट उठाने से क्या हो रहा है, वो पेन, सीवियर पेन स्टार्ट हो गया। बट द इंजरी इज नॉट दैट मच, ज्यादा इंजरी नहीं हुई थी और उसकी वजह से वो रिकवर हो गया, वापस ठीक हो गया। और नाउ आई एम एबल टू बेंड, सेम जो पहले बेंड करता था उतना कर पा रहा हूँ। लेकिन बहुत ऐसे होते हैं जो इतना भी नहीं कर पाएंगे, बस हो गया हमारा इतना ही, बस ठीक है, वो सीधे रहते हैं, ऐसे पेन बहुत होता है। तो अपनी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल में काम करने से हम चारों तरफ बीमारियों से घिरे हुए हैं। द हाईएस्ट इज इन्फेक्शन, hospital is a most infectious environment and the nurses are most prone for developing infection, and that's why highest infectious cases are present in nurses. Needle stick injuries is a very serious problem and most nurses are suffering with HIV or HBS, HSV और HBsAg। जो सीरो पॉजिटिव केसेस है उनमें नर्सेज इज द लीडिंग नंबर, सबसे ज्यादा लीड कर रही है, टॉप पे है पॉजिटिव में। एंड ये इंपैक्ट अभी नहीं करेगा लाइफ में, लेकिन आप बाद में जब लोग चेंज नहीं हो सकते, लोगों का मेंटलिटी चेंज नहीं होगा, आपको आइसोलेट करेंगे, आपको पानी नहीं, हाथ से पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे, दैट टाइम यू फील कि ये मैंने क्या किया, मेरे साथ लाइफ में क्या हो गया। एक ब्रिक होने से आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद जाएगी। एंड मेनी ऑफ द पर्संस विल अंडरगो सुसाइड आल्सो, बहुत सारे सुसाइड कर लेते हैं। तो अपनी लाइफ को बचा के रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज को करने से पहले 2 बार 4 बार सोचें कि ये करने से मेरा हेल्थ खराब नहीं होना चाहिए, वो पहली प्रायोरिटी है। द रेडिएशंस, लाइक व्हेन वी आर यूजिंग सियाम, हाई रेडिएशन एक्सपोजर विल बी देयर, सो ऑलवेज ट्राई टू वियर द लेड एप्रिन, डोंट इग्नोर इट कि 5 मिनट का प्रोसीजर है, क्या होगा, नो, जस्ट वियर लेड एप्रिन, सो इट विल हेल्प यू फॉर ए लॉन्ग लाइफ। अगर आपको चाहिए 4 दिन की जिंदगी तो फिर ठीक है, बाकी लंबा जीना है तो फिर ये सारी चीजों को क्या करें, ध्यान रखें। बहुत 60 साल तक नौकरी करनी है, फिर अपनी जिंदगी जीनी है, क्योंकि 60 साल तक तो भागते रहोगे, जिंदगी कब आएगी? 60 साल के बाद में, जब अकेले हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा। अभी जो है वैसी लाइफ 60 साल बाद आएगी, अभी भी अकेले ही है, बाद में भी अकेले ही होंगे। बच्चे काम पे चले गए, आपकी तरह वो नर्सिंग ऑफिसर बनने के और जाएंगे या डॉक्टर जो भी बनेंगे, और वो उनकी फैमिली सजा रहे होंगे, और आप हस्बैंड और वाइफ आए गए में, दांत होंगे नहीं मुंह में, दोनों बैठे बैठे पूरे दिन अखबार पढ़ेंगे और कुछ काम होगा। इसलिए अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए अभी से क्या करें, अभी से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है। जब भी आप हॉस्पिटल में जाइए पहले से ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें। यस, चले नेक्स्ट आगे। द नेक्स्ट इज द lateral flexion is least permeable at thoracic. Lateral means this lateral जो हम बात करते हैं ये लंबर के अंदर हाईएस्ट होता है, नेक आपके सर्वाइकल के अंदर भी प्रेजेंट रहता है, सर्वाइकल एंड लंबर। लेकिन अगर हम थोरासिक की बात करें तो थोरासिक कभी भी लैटरल नहीं जाता है, ऐसे सीधा रहता है, ऐसे बेंड होता है।
thoracic पूरा, वो कभी भी ऐसे bend नहीं होगा thoracic. So least permeable in which part of the vertebrae column lateral flexion answer should be thoracic region does not have lateral flexion. The next is least permissible movement at lumbar is rotation. रोटेशन जानते हो, ये जो हम रोटेट करते हैं, अगर हम बात करें रोटेशन की तो दिस विल मूव मोर, ये तो बहुत होता है. इवन थोरासिक विल, आप ऊपर की यहाँ की बॉडी को भी बहुत इजीली मूव कर सकते हैं, दिस पार्ट चेस्ट वाला पार्ट. लेकिन जो लंबर वाला पार्ट है ये भी बेंड होता है, पर आप देखेंगे जो आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है वो बहुत कम बेंड होता है. इट इज लीस्ट बेंडेबल और लीस्ट फ्लेक्स जो आपको रोटेशन देखने को मिलता है. अगर आपने ज्यादा रोटेट किया देयर विल बी अगेन लंबर इंजरी, फिर से क्या हो जाती है, लंबर इंजरी हो जाती है. तो लीस्ट परमिएबल रोटेशन कहां पे है, लंबर में, एंड लेटरल फ्लेक्शन लिस्ट इन थोरासिक स्पाइन. क्लियर है ये, मूव करें. नेक्स्ट मूव करें. नेक्स्ट सॉरी, बंद हो गया. मेनिंजेस लास्ट कहां तक होती है, S4 अभी बताया था. सो मेनिंजेस की बात करें, फर्स्ट वन इज L1, आपका पायामीटर एंड एट द L1, रेक्नोमीटर एंड एट द S2 एंड ड्यूरामीटर एंड एट द S4. सो दिस इज द meninges location, कहां पे कौन सी meninges लास्ट होती है, and a single thread like structure of pyometer or the extension of pyometer reach to the last part of the vertebrate column that is known as phylum terminate. Next, length of spinal cord is 45 centimeter, average is 45 to 50 centimeter, thickness 2 centimeter or a little finger. At the end of spinal cord a cone shaped structure is called conus medullaris, अभी बताया था मैंने. Continue as a phylum terminator which is about 20 centimeter and derivative of pyometer. phylum terminate किससे बनाए, pyometer से. Spinal cord terminate at the L1 level, but L2 to C1 spinal nerve originate from L1 level and form a tail-like structure called coda in our spinal cord. The last concept structure which is known as conus medullaris and L1, the last part is spinal cord का, वहां से rise होगी and they will form a tail-like horse tail-like structure which is known as coda. देख लिया, हटा दे, स्टार्ट हो गया. ओके, मूव करें. सो दिस इज द रेनी सीजन जो अभी स्टार्ट हो गया है, आज से हो गया जोधपुर में स्टार्ट. थोड़ी देर में अभी बाढ़ आएगा और आप बच के रहें, इधर उधर नहीं जाएं, क्योंकि कभी भी कुछ भी कहीं से सड़क जा सकती है नीचे, तो कभी ऊपर से कुछ नीचे आ सकता है. ये जोधपुर में फ्रीक्वेंटली होता है. सो आप, और थोड़ी देर में वीडियो जाएंगे, आपको ऐसे गाड़ियां बहती हुई मिलेगी थोड़ी देर में से. बिकॉज जोधपुर का जो उधर वाला एरिया हिली एरिया है और वहां से पानी ऐसे आता है और गाड़ियों को साथ ले जाता है, ऐसे लगता है बाढ़ आ रहा है, तो वो बाढ़ नहीं है, वो नॉर्मल है, इट इज नॉर्मल इन जोधपुर. और थोड़ी देर बाद कल सुबह वही सन आएगा वापस 45 डिग्री के साथ में, इट्स सन सिटी, वो मस्ट है. लिख लिया. नाउ दिस इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. अब हम इसके अंदर की बात करते हैं, अंदर कैसा होता है. इंटरनली द स्पाइनल कॉर्ड जो आपका स्ट्रक्चर है वो कैसे आपको दिखेगा, इंटरनली इनमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती है उसको हम बनाते हैं और ड्रॉ करते हैं और बात करते हैं. मूव करें. लिख लिया. यस, स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट एट L1. C1 is coccyx. It is not. This is the end is L1. यहाँ पे क्या है, L1 है, लेकिन नर्व L2 भी होती है, L3 भी होती है, L4 भी होती है, L5 भी होती है, नर्व तो होती है, लेकिन नीचे तो स्पाइनल कॉर्ड है नहीं. There is no spinal cord below the L1 level. Spinal cord is present above the L1 level. So the nerve which is arise after the L1 like L2, L3, L4, L5, L5, then S1, S2, S3, S4, S5 and C1. ये नर्व कहाँ से आएगी जब यहाँ स्पाइनल कॉर्ड ही नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो स्पाइनल कॉर्ड है ही नहीं. So these nerve will originate at the last part of a spinal cord. जो L1 part है वहीं से आती है. L2, L3, L4, L5, S1, S2, S3, S4, S5 and C1. So this meaning of this line is spinal cord terminate at L1 level, but L2 to C1 यानी number 2, 3, 4, 5, S1, S2, S3, S4, 5 and C1. These nerve originate from L1 level, जो last part है वहां से आती है, and they will form a tail-like structure which is called coda equina. लिख लिया. Next,
The next is the internal structure of spinal cord. कैसे दिखता है अंदर से? So spinal cord की structures बहुत important और एग्जाम में मल्टीपल टाइम जो है क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, तो बात करते हैं कैसे स्पाइनल कोड अंदर से आपको विजिबल होता है और कैसे नर्व अप डाउन मूवमेंट करती है. लिख लिया, हटा दे. नेक्स्ट मूव करें. टीवी ऑन नहीं हुआ पीछे? हो गया अभी? अरे बड़ा टीवी इधर इतना बड़ा है, इसमें देखो. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कोड. जब हम स्पाइनल कोड की बात करें तो अंदर से कैसा दिखेगा ये? सो दिस इज द हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कोड. बातें बंद कर दे. हेमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कोड. इंटरनली इट विल बी लुक लाइक एन एच शेप. अंदर से कैसा दिखता है? एच शेप दिखता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर. इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर दिखाई देगा आपको यहाँ पे. सो प्रेजेंस ऑफ ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर जो हम बात करेंगे यहाँ पे कैसे होता है देखिए. दिस इज द फर्स्ट वन. सो दिस इनर पार्ट, ये जो पूरा मैंने अंदर वाला पार्ट बनाया, इट विल बी लुकिंग लाइक एच. एच जैसा दिखता है. सो दिस इनर पार्ट इज द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कोड एंड आउटर पार्ट इज द व्हाइट मैटर. सो ये बाहर की तरफ जो है ये क्या है? इधर दीज आर द व्हाइट मैटर एंड जो अंदर की तरफ है वो क्या है? ग्रे मैटर. नाउ इन दिस स्ट्रक्चर, सो यहाँ लिख देते हैं हम, दिस इज द ग्रे मैटर. ये क्या है? पूरा ग्रे मैटर and this is the white matter. Outer one is the white matter. The next one is in our spinal cord. These structures जो white matter से बनी है, these structures are known as, कल बताए थे, these are known as, अरे कल तो बताए थे, column. These are known as column. So these are the columns and these things. This is the different color. This one. This is the 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These are the horn of spinal cord. Two things to याद रखनी है. White matter will form the column of the spinal cord and grey matter will form the horn of the spinal cord. याद रहेगा? White matter क्या बनाएगा? Column of the spinal cord and grey matter will form horn of the spinal cord. Now, if I will divide this spinal cord into two parts like this, जो हमने कल बनाया था, then this part which is present in anterior, ये किसमें होगा? Anterior, and that will be in the posterior. Anterior is also known as ventral. Posterior is also known as dorsal. So this column, like ये जो दो column यहाँ present है, these are known as anterior column, anterior और ventral column. These are known as posterior और dorsal column, posterior और dorsal column, and these two are known as a lateral column. इनको हम क्या बोलेंगे? Lateral column. So these are the sit. So this is the lateral column. Clear? Anterior, posterior and lateral column. Column का क्या पर्पज है? What is the meaning of, what is the purpose of column? Column क्या करेंगे? What is the function of column? So through the horn, nerve will enter into the spinal cord or exit the spinal cord. Horn के थ्रू क्या होगा? Nerve या तो enter करेगा या exit करेगा. किसके थ्रू? Horn के थ्रू. And through the column, nerve will move up or down. ऊपर और नीचे जो जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा? Column. And enter किसके थ्रू करेगा? Horn. Yes. So the nerve will be enter like ये जो part है, this will be move like this. ये कुछ ऐसा देखा होगा आपने पिक्चर कभी? देखा है? जो भी ये बातें करने की कोशिश कर रहे हैं अभी बारिश में बाहर निकाल दूंगा मैं. Yes. So these are the entry or exit of the nerve point जो हम बात कर रहे हैं किसके थ्रू? Through the horn. ये क्या है? Horn. The horn which is present in anterior part, these are known as anterior horn. ये क्या है आपका? Anterior horn. And those which is present in posterior part known as posterior or dorsal horn. Posterior और
dorsal horn, and those are present in lateral. lateral यहाँ बनाना possible नहीं है, lateral should be required 3D picture. So यहाँ से जो राइज हो गया, ये मैंने दो बनाए थे, ये दोनों क्या lateral horn है, और इनको हम क्या, यहाँ से जो नर्व आएगी वो lateral horn, ये इनका नाम क्या हो गया, lateral horn. Clear? Lateral. So this is the basic structure of a spinal cord internally. Internally spinal cord कैसा होता है, तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है. Internal structure of the spinal cord. याद हुआ, कुछ क्लियर हुआ? Simply याद क्या रखना है, अंदर क्या होता है, दो structures, gray matter and white matter. Gray matter will form the horn of the spinal cord. White matter will form the column of the spinal cord. Horn is responsible for entry and exit of the spinal nerve, and the column is responsible for movement up and down. nerve को ऊपर नीचे ले जाने के लिए कौन है, columns. Clear? बंद हो गया है? ऑन नहीं है यार भाई, ये भी ऑन करो भाई, इधर भी ऑन करो इनका, इनसे क्या दुश्मनी हमारी है? So this is the internal structure of a spinal cord. These are known as nerve root. इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो है nerve root. फिर आगे जाके क्या बनाएंगे, बंच बनाएंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, plexus formation, जो अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे, plexus formation. नेक्स्ट चले आगे, मूव करें. horn and column is clear. The fiber which is moving through the dorsal column is known as dorsal column fiber. The fiber which is moving through the anterior column is known as anterior column fiber, and the fiber which is moving from the lateral column is known as lateral column fiber. जो हमने आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा बताया था, डिटेल में मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगा स्पाइनल कोड के अंदर. ये हो गया, हट दे. अरे इसमें मैंने थोड़ा सा बताया था, डिटेल में मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगा स्पाइनल कोड के अंदर. ये हो गया, हट दे. अरे from cross section view of spinal cord, it is like a H shape structure is called horn of spinal cord. जो H shape बन रहा है उसे क्या बनेंगे, आपके horn बनेंगे. और ये H shape कौन बनाता है, gray matter और white matter. Gray matter. The horn of the spinal cord outer part is consist of white matter. बाहर कौन होगा, white matter, and inner part of the gray matter. This will be, ये तो अपना बनाना है, इसको नहीं बनाना है. This is not, ये हमारा नहीं है, हमारा वाला बना लिया आपने. The horn of the spinal cord will be, ये तो अपना बनाना है, इसको नहीं बनाना है. This is not, ये हमारा नहीं है, हमारा वाला बना लिया आपने. So horn and पढ़ेंगे तब आपको वहां पे ये रिक्वायर्ड होगा, हॉर्न एंड कॉलम. अगर ये नहीं पता चलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा बाद में, तो याद रखें, इनको रिवाइज करते रहें. यस, मूव करें. मिलते हैं. रिजल्ट देख लिया सबने, एरर होगा लेकिन बाकी, और हम अपने आप को गलत कह नहीं नहीं होती तब तक पढ़ते रहना है. जो स्पाइनल कोड, व्हाट इज ट्रैक्ट, व्हाट इज ट्रैक्ट, व्हाट इज ट्रैक्ट, इट्स नॉट बंच. द नर्व, द फाइबर व्हिच कैरीज इंफॉर्मेशन अप एंड डाउन, दैट इज नोन एज ट्रैक्ट. कितनी बार बता दिया, द फाइबर व्हिच कैरीज इंफॉर्मेशन अप एंड अप डाउन, दैट इज नोन एज ट्रैक्ट. दोस कैरीज इंफॉर्मेशन राइट एंड लेफ्ट, commissural fiber, those carries information anterior posterior, associative fiber और association fiber. So these are the tracts जिसकी हम बात करेंगे spinal cord के अंदर. Tracts, there are two types of tracts in our spinal cord. So this is the spinal cord. Here we have two types of fiber, one fiber like moving in this direction and one fiber which is moving in this direction. The first fiber which carries information from peripheral part of the body, peripheral part of the body to the central part of body or brain. कहां से कहां तक, periphery to brain. The information is moving in ascending pathway. जब कोई brain की ओर जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ascend करना, that is ascending. And brain से away जाता है उसको हम बोलते हैं descend करना. So the information which is moving from peripheral part to the brain, this is known as ascending. ये क्या है, ascending. And the information which is from brain to peripheral part, this is known as descending. This is known as descending. The information which is from peripheral part to brain move करेगी, this will be always sensory. ये कौन सी होगी, सेंसरी होगी. ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ से मोटर जो है ऊपर जाता है, ये हाथ ने ऐसे मूवमेंट किया और ये इन्फॉर्मेशन ऊपर गई, ऐसा होता है. यहाँ पे एक पिन चुकाया, उसको निकाला और फिर इसने बोला कि मैंने पिन निकाल दिया, अब क्या करना है, ऐसा होता है. पहले क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है. फर्स्ट यू विल हैव द सेंसरी इन्फॉर्मेशन that will be ascend from peripheral part to brain, and then brain will calculate, coordinate, and then give message to the motor neuron, and they will descend the information to peripheral part. So descending is always motor. First always periphery, जो periphery to brain sensory, and second one is always motor. So these neurons are also known as ascending tracts, the sensory tracts, or in some time it is also known as afferent tracts. Afferent.
and these are known as descending tract, motor tract, or efferent tract. Efferent tracts. Clear? Three types of tracts. So not three types. The name of the these tracts: afferent, ascending, or the sensory, descending, motor, and efferent. तो ये यहाँ पे लिखा है. Ascending tract, sensory tracts, which is also known as spinocerebellar tract. Spinal cord से cerebellum तक लेके जा रहा है, cerebellum तक. That is known as spinocerebellar tract. It contains spinal sensory nerve, which carries information or impulses from peripheral to brain. इनको मदरवर्ड में और क्या लिख सकते हैं? Afferent. Next, descending tract, motor tract, or corticospinal, cortex to the spinal. It is also known as efferent. It contains the motor nerve fiber which receive impulses from the brain and transmit these to the peripheral part of the body. So these are known as ascending and descending tracts of body. Those fiber carries information from the peripheral part to brain, that is known as ascending or descending. Ascending, and from brain to peripheral part, descending. Move करें. Upper motor neuron and the lower motor neuron. लिख ले. Next, second one is the upper motor neuron and the lower motor neuron. Second classification is only for the motor neuron, not for the sensory neuron. And motor neuron की बात करते हैं. लिख ले. हटा दे. This is your spinal cord. I'm just drawing a single motor neuron which is carries information from brain to the peripheral part. So this is the neuron which is carries information from brain and brain to the peripheral part. So this neuron which carries information from the brain, and it will be carrying information like this. It is a motor neuron. In this tract, we have two parts. The first part which is present in our central nervous system. This is from brain and then to spinal cord, and from spinal cord to peripheral. So the nerve fiber or the neuron or nerve which present from the brain to spinal cord, or we can say in the central nervous system, is only that nerve fiber is known as upper motor neuron. This is known as upper motor neuron. And the fiber which is from the spinal cord to peripheral part, this is known as lower motor neuron. What is upper motor neuron? From the brain. Motor neuron and lower motor neuron. Upper motor neuron which is present in central nervous system, brain and spinal cord, and from the spinal cord to peripheral part, that is lower motor neuron. It is very important to understand these two neuron fiber. जब एग्जाम में आप पढ़ेंगे, एग्जाम में कभी-कभी क्वेश्चन आता है कि ये पेशेंट इज सफरिंग विद द इंजरी इन द अपर मोटर न्यूरॉन और इन द इंजरी इन द लोअर मोटर न्यूरॉन. व्हाट प्रॉब्लम विल बी देयर? क्या प्रॉब्लम होगी? सो द प्रॉब्लम इज पर्सन विल सफर विद पैरालिसिस. पेशेंट में क्या हो जाएगा? मोटर एक्टिविटी बंद हो जाएगी. It is a motor neuron, so motor activity will stop. Paralysis will be there. But we have two types of paralysis. One is flaccid paralysis, and second one is spastic paralysis. Flaccid and spastic paralysis. First, you have to understand what is flaccid paralysis and what is spastic paralysis. So, like my this right hand is in the paralysis condition. Paralyzed होने के बाद आपने क्या किया? Just holding this hand like this. After this, when you remove your support, this hand will be go like this. Again, you are lifting the hand, and when you removing the support, it will be go like this. No power, loss of muscle tone, power, everything is lost. This is known as flaccid paralysis. ये क्या है? Flaccid paralysis.
and I am also not able to move this my hand, मैं भी move नहीं कर पा रहा हूँ. And in case of spastic paralysis, the person is not able to move the hand, it will be in the same condition. And second thing is that the hand is in very tight situation, the muscle tone is very high, you are not able to lift the hand. आप ये hand ऐसे ही रहेगा, ना तो person इसको open कर पाएगा, ना आप कुछ कर पाओगे. It will be like this only. If you are going to try to lift this hand, you are not able to lift the highly spastic, and muscle tone power will be very high. This type of condition is known as spastic paralysis. Now we compare with these two neurons, which neuron produce flaccid and which neuron produce spastic. So every time I'm give the example of a father and a not his son. So when the father is controlling the son, जब आप पिताजी का हाथ है बेटे के ऊपर, तब तक बेटा क्या रहता है, कंट्रोल्ड रहता है. When child under the control of father, that child will be under controlled. वो कुछ ज्यादा मस्ती बदमाशी नहीं करता है. But when father remove their hands, like बच्चे को भेज दिया जोधपुर पढ़ने के लिए, अब पिताजी का हाथ ऊपर से हट गया and बच्चा क्या हो गया, out of control. Now child will be uncontrolled. So problem क्या होगी, this upper motor neuron is like a father and this lower motor neuron like a son. This upper motor neuron controlling the activity of lower motor neuron. This upper motor neuron control the activity of lower motor neuron. If this upper motor neuron is lost or damaged, then the activity of lower motor neuron will be uncontrolled. Activity क्या होगी, uncontrolled. So in case of when पिताजी नहीं रहे, father is lost, when upper motor neuron is damaged, the lower motor neuron will be uncontrolled, and when son is in uncontrolled situation, then वो फिर अपने मन मर्जी करेगा, कुछ भी करेगा, उसका पावर टोन मसल टोन सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा. एंड इन दिस सिचुएशन व्हेन अनकंट्रोल्ड पावर इज देयर, देन पर्सन विल हैव दिस टाइप ऑफ पैरालिसिस, spastic paralysis. Spastic paralysis. So in case of injury to the upper motor neuron, that lead to which paralysis, spastic paralysis. In case of damage to upper motor neuron, that lead to spastic paralysis. And in case of injury to the lower motor neuron, जब बेटा ही नहीं रहा तो उसका क्या पावर बढ़ेगा, बेटे को खत्म कर दिया, फिर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, मरे हुए हाथ उठा के छोड़ोगे ऐसे ही गिरेंगे. So person will undergo which paralysis, the flaccid paralysis. So flaccid paralysis कब होता है, जब आपके पेशेंट में कौन सी इंजरी होगी, lower motor neuron injury. And when person is having upper motor neuron injury, then person will have spastic paralysis. Clear? याद रहेगा. चले मूव करें, हटा दें इसको. So यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पूरा खाली है. upper motor neuron and lower motor neuron. Upper motor neuron between brain and the spinal cord, or we can say in central part of the body, central nervous system. Lower motor neuron is between spinal cord and the peripheral part of body. Next, the next third type, दो type हो गए, पहला था ascending and descending tract, दूसरा था lower motor neuron and upper motor neuron. Now we have the third type, and this is the pyramidal tracts and extra pyramidal tracts. ये क्लियर हो गया, lower motor and upper motor क्लियर है, इंजरीज याद हो गई. डिटेल में इंजरीज में बताऊंगा जब मैं आगे आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज पढ़ाऊंगा, वहां पढ़ाएंगे. When person is suffering with upper motor neuron or the lower motor neuron type of injury, then which problem and what symptoms, I will teach you everything about the spinal cord injuries. It's like स्पाइनल कोड के कुछ कॉमन टाइप्स होते हैं, एंटीरियर कोड सिंड्रोम, पोस्टीरियर कोड सिंड्रोम, लेटरल कोड सिंड्रोम, ब्राउन चिकवार्ड सिंड्रोम, सुने, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, अपर मोटर न्यूरॉन फ्लैसिड पैरालिसिस, स्पास्टिक पैरालिसिस, हाइपोटोनिया, ये सारा हम आगे डिटेल में वन बाय वन पढ़ेंगे. नेक्स्ट, पिरामिडल एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स. व्हाट इज पिरामिडल एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट? What is pyramidal tract? What is extra pyramidal tracts? Okay, one condition which is known as EPS. What is EPS? Extra pyramidal symptoms that arise from this extra pyramidal tract. The EPS will arise from extra pyramidal tracts. When extra pyramidal tract working or functionally abnormal, that will produce EPS, extra pyramidal symptom. EPS कब आते हैं? EPS कब आते हैं? When person will have EPS? सर ये एंटीसाइकोटिक ड्रग लेता है तब आता है. Without antipsychotic drug EPS नहीं आ सकते. Always remember the cause of thing. It is not due to antipsychotic drug. It is the excess activity of dopamine. Either it may be due to antipsychotic drug or either it may be due to the excess production of dopamine in your body. किसी भी वजह से आ सकते हैं. एंटीसाइकोटिक ड्रग इज ए डोपामिनर्जिक ड्रग. उसमें क्या होता है, एंटीसाइकोटिक में क्या होता है, डोपामिन होता है, नहीं होता है. सो ब्लॉक करता है. वेरी गुड. सबसे ये लो, ईपीएस ईपीएस तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना, डोपा एंटीसाइकोटिक पढ़ाऊंगा. दिस इज द डोपामिन. मेन प्रॉब्लम इन स्किज़ोफ्रेनिया, इसका लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ा हुआ है. आपने क्या दिया, एंटी साइकोटिक. व्हेन यू आर गिविंग एंटीसाइकोटिक, दिस एंटीसाइकोटिक ब्लॉक द डोपामिनर्जिक रिसेप्टर. जो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर उनको क्या करेगी, ब्लॉक कर देगी. स्पेसिफिकली D2 रिसेप्टर्स. इट्स अ D2 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग. व्हेन दिस ब्लॉक द D2 रिसेप्टर एंड इफ दिस D2 रिसेप्टर्स आर क्रोनिकली सप्रेस्ड फॉर लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, जब लंबे टाइम तक इनको हम क्रोनिकली ओवरडोज करके इनका सप्रेशन करेंगे, इन दैट सिचुएशन द डोपामिनर्जिक एक्टिविटी विल नॉट इंक्रीज, दैट विल decrease, and that will lead to combination of 4 or 5 symptoms that is known as, 4 symptom 5 होते हैं, 4 होते हैं,
पांच होते हैं EPS which is known as EPS and these EPS are the first symptom is पहला एमसीक्यू ये आता है the first EPS present in पहला कौन सा होता है there are four symptom acute dystonia akathisia muscular this क्या बोलते हैं इसको oculogyric crisis जो आता है pseudo parkinson and tardive dyskinesia with rabbit syndrome so there are four symptom acute five symptom acute dystonia pseudo parkinson akathisia and rabbit syndrome and tardive dyskinesia rabbit syndrome is a type a subtype of tardive dyskinesia so the symptom which is present in your body EPS present hoga this will be present in this इसी equation में होगा first will be acute dystonia second will be pseudo parkinson third will akathisia and the last which is very rare that is rabbit syndrome or the tardive dyskinesia the most common symptom is akathisia and akathisia is nothing it's just like walkies and talkies person ऐसे भागता रहेगा और अपने आप से बता रहेगा you don't know क्या बड़बड़ करता रहेगा this is known as akathisia acute dystonia the muscle tone is suddenly increased the person will having oculogyric crisis the torticollis symptom will be there person head will be like this suddenly ऐसे हो जाएगा this is known as acute dystonia pseudo parkinson person will have the triad of parkinson symptom because of decreased dopaminergic activity three symptom बताए थे tremors bradykinesia and third one is cogwheel rigidity it's muscular rigidity और उसका टाइप लिखा हमने cogwheel rigidity so three symptom with face mask like face and shuffling gait ऐसे चलेगा shuffling gait this is the acute this pseudo parkinson the most dangerous condition or the irreversible situation और irreversible EPS पूछे तो आंसर इज एक बार अगर ट्रेडिव डिस्काइनेज हो गया तो पर्सन की डेथ होगी कभी वो रिवर्स नहीं होगा वापस ठीक नहीं होगा बिकॉज इसका पूरा पैथोफिजियोलॉजी वो तो मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा आप ड्रग को बंद करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम इसलिए वहां कुछ नहीं कर सकते हम ट्रेडिव डिस्काइनेज एंड रैबिट सिंड्रोम में क्या डिफरेंस है रैबिट सिंड्रोम एंड जब हम ट्रेडिव डिस्काइनेज की बात करें तो रैबिट सिंड्रोम इज सिंपली वी कैन से इट्स अ पेरी ओरल मूवमेंट दैट इज नोन एज द पेरी ओरल ये जो आपका इस तरह के पर्सन रैबिट को देखा उसका मुंह ऐसा होता है मैं कहता हूं दिस इज नोन एज रैबिट सिंड्रोम पर्सन विल हैव द पेरी ओरल मूवमेंट ओनली without tongue protrusion that is known as rabbit syndrome and the person is having perioral movement or facial movement with tongue protrusion that is known as tardive dyskinesia this is the difference between rabbit syndrome and tardive dyskinesia and these conditions are irreversible person will die डेथ हो जाएगी so ये EPS है इनको हम बोलते हैं EPS ये हमारे काम के नहीं है किसकी वजह से आते हैं ड्यू टू abnormal functioning at the extrapyramidal tracts अब हम बात करें इस extrapyramidal tract को मैंने क्यों यहाँ पे आपको उसके साथ कनेक्ट किया आपने ध्यान पढ़ा होगा तो डोपामिन कहां से आता है कौन डोपामिन प्रोड्यूस करता है पता नहीं सर हमने कभी पढ़ा ही नहीं पार्स कॉम्पैक्टा याद है पार्ट ऑफ सब्सटेंशिया निग्रा पार्ट ऑफ मिड ब्रेन याद है दिस डोपामिन वर्क एट व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन प्रोडक्शन करता है मिड ब्रेन काम कहां करता है पता नहीं सर कहां करता है सो जब हमने फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ बेसल गैंग्लिया लिखा था तब मैंने बनाया था सब्सटेंशिया निग्रा और बोला था इन फंक्शनल क्लासिफिकेशन द मिड ब्रेन विल प्रोड्यूस द डोपामिन एंड दैट डोपामिन रीच टू द बेसल गैंग्लिया एंड वर्क और डिस्टर्बेंस भी दिखाया था डोपामिन डिक्रीज होगा तो एसिटाइलकोलिन बढ़ जाएगा एंड पर्सन विल हैव एन इंबैलेंस सो डोपामिन कहां वर्क करता है बेसल गैंग्लिया में और बेसल गैंग्लिया में वर्क करने का क्या यहां रोल है दिस इज द ब्रेन मिड ब्रेन pons spinal cord the nerve fiber which is arise from the cerebral cortex जो भी फाइबर कहां से आएगा cortex से आएगा in our cerebral cortex we have a special pyramidal shaped cell which is known as Bed's cell याद है that's why it is known as pyramidal tracts because the nerve fiber is arising from the pyramids of the cerebrum Bed cell of the cerebrum so इसको हम क्या बोलेंगे Bed cell ये फाइबर क्या है आपके pyramidal tracts and the fiber which is arising other than cerebral part cerebrum के other part like यहाँ पे basal ganglia होगा आपका लिम्बिक सिस्टम था याद है सो यहां से जो फाइबर आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स द फाइबर व्हिच इज अराइजिंग फ्रॉम सेरेब्रल कॉर्टेक्स व्हिच नोन एज pyramidal tract and the fiber which is arising other than cerebral cortex which is known as extrapyramidal tract and most of the other fiber are arising from basal ganglia सारे मोस्टली कहां से आते हैं extrapyramidal tract से basal ganglia से इसीलिए basal ganglia का फंक्शन एब्नॉर्मल होगा और पर्सन को क्या देखने को मिलेंगे EPS extrapyramidal symptoms तो यहां लिख देंगे दोनों में ये कहां से आएंगे ट्रैक्ट्स pyramidal tract cerebral cortex arise from cerebral cortex cerebral cortex and these arise from oh sorry arise from other than cerebral cortex that's why it is known as extra pyramidal pyramidal के अलावा other than pyramidal extra that is extra pyramidal clear है
ये रही है, सभी को मूव करें। नेक्स्ट, so these are the tracks of spinal cord. Now we have the next is very important structure which is known as spinal plexus. Next is spinal plexus. What is plexus? Plexus is the bunch of capillaries, not the caudal artery. Plexus का मतलब होता है bunch. कोरोइडल का होगा तो कोरोइडल प्लेक्सिस, स्पाइनल नर्व का इसलिए स्पाइनल प्लेक्सिस, और किसी का होगा तो उसका प्लेक्सिस. प्लेक्सिस मींस अ बंच. हर जगह प्लेक्सिस आता है, कोरोइडल में नहीं जाना है. That is separate artery or vessels. So here we have the bunch of spinal nerve that is known as spinal plexus. There are 5 plexus in our body. That is cervical, cervical. Then very important is brachial, then lumbar, sacral and coccygeal. We'll discuss in detail about this plexus and the remaining part of spinal cord in next class.